Namaskar friends, this video will be in two parts. In the first part we will be discussing about types of people who surrender to Krishna as explained by him and types of people who don't surrender. So this will be the first part. The second part of the video will be discussing how we can prevent ourselves from being entangled in the karmic cycle. So karmic bondage, how can we free ourselves from that? That will be the subject of the second video. So let's start with the first video. So types of people who surrender to Krishna and types of people who don't, these are explained in chapter 7 verse 15 and 16 very explicitly. So let's go to that. There are four types who will never surrender. So this is in verse number 15. So Krishna calls them by different names. The ignorant ones, the Mura, the person who will never check the map, he has no exposure or curiosity, and he is just living mechanically. The pleasure of senses is the only motivation for him. So eat, work, sleep, so no spiritual questions. This is the first kind of persons who will never surrender to Krishna. The second level of person is Naradma, which Krishna calls the lowest of men. So they have, by virtue of some previous good karma in births earlier, they have attained in this birth some position of respectability, but they are misusing it. So they are the lowest, of the type of people who never surrender, because they have this opportunity and they were supposed to go further in the spiritual journey, but they are, misutilizing that opportunity. So they are passengers who have a ticket, but they won't board the train. So apathy, procrastination. So this kind of people are the second kind. So they will never meditation will be for them. कल करेंगे और 20 साल तक नहीं होगा कल. And the third kind of person is a deluded intellect one. So Maya Parheta Jnana. So a scientist who rejects the microscope, वो उसकी बुद्धि ऐसी गलत रास्ते पे चली गई है, so उसकी ईगो उसके अंडरस्टैंडिंग को ब्लॉक करती है. तो वो we have so many of our learned friends educated, but will dismiss Gita as mythology without even reading it. So like we have explained, एक reasonable faith तो रखिए और उसके बाद decide कीजिए, but these kind of people will never even look towards that path. as एक scientist microscope को believe ही नहीं कर रहा हो इस तरह का. The fourth are the demonic nature, जो असुर type के mentality के हैं. So they have hostility towards the divine, so they will mock devotees, discourage spiritual practice. So ये जो चार type के people हैं, I am sure we have no one amongst us who are people who will never surrender. So there is we belong to the other four types who do surrender. So these four types are a mirror shown by Gita to us कि अगर इस type में आप आ रहे हो तो इससे please निकलिए. So four of this category turn away because the inner doors are closed. उनके जो हृदय के दरवाजे हैं, the soul जो चाहता है भगवान से ज्ञान प्राप्त करना, वो दरवाजा खुद बंद है. So they are on a descending ladder away from God. So ignorance है, laziness है, ego है, hostility है, इन सब में ये त्रस्त है. ये तो 4 टाइप हैं जो सरेंडर नहीं करते हैं, और ऑफ कोर्स 4 टाइप्स ऐसे भी हैं जो सरेंडर करते हैं. Hopefully and thankfully all of us will fall into some of these categories. एक तो डिस्ट्रेस्ड कैटेगरी है जो किसी आर्थिक कारण से या किसी है
शारीरिक कारण से किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही हैं और उस प्रॉब्लम में, उस सफरिंग में उनको लगता है कि कृष्ण जी उनकी सफरिंग दूर कर सकते हैं और वो बहुत इंटेंसली प्रे करते हैं जब भी इस क्राइसिस से वो गुजर रहे होते हैं। तो ये जैसे ही ये क्राइसिस दूर होगा तो उनका जो एक अच्छी भक्ति भावना जागृत हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी और फिर किसी क्राइसिस का में वो भावना जागेगी। तो इस तरह के पर्सन हैं जो एक क्राइसिस की वेट करते हैं कृष्ण से कनेक्ट करने के लिए। एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कुछ चाहते हैं, मेटलिस्टिक उनकी चाहें हैं, डिज़ायर्स हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए, जस्ट लाइक अ फार्मर प्रेइंग फॉर रेन और अ स्टूडेंट प्रेइंग फॉर गुड एग्जाम रिजल्ट्स, तो वो एक रिजल्ट के लिए प्रे कर रहे हैं। द फर्स्ट काइंड वाज गोइंग थ्रू अ क्राइसिस। इनको क्राइसिस नहीं है पर ये अपनी मेटलिस्टिक चाह को पाने के लिए प्रे कर रहे हैं, कृष्ण से कनेक्ट चाह रहे हैं। तो तीसरी कैटेगरी है वो इंक्विजिटिव है, जो जिज्ञासु हैं। वो चाह रहे हैं कि हम जो सोल की जो फूड है, जो स्पिरिचुअल टेक्स्ट है, जो हमारे ज्ञान है, वो हम अर्जित करें इसी जन्म में। तो वो जिज्ञासा से ये सब अंडरस्टैंड करने की चेष्टा करते हैं। सो मेडिटेशन करते हैं और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनके अध्ययन करते हैं, उसकी फिलॉसफी को जानने की कोशिश करते हैं, उसकी लॉजिक को समझते हैं। तो ये थर्ड कैटेगरी है। और फोर्थ कैटेगरी है जो इस थर्ड कैटेगरी से निकलने के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो दे हैव सम लेवल ऑफ विजडम एंड इंटेलेक्ट, सो दे हैव प्योर डिवोशन एंड नॉलेज। सो बहुत सारे हमारे जो सेंट्स और भक्त हुए हैं इसी कैटेगरी में आते हैं। सो this kind of person, as a metaphor, we are comparing it to a passenger who boards the train, because उनको ये अच्छा लगता है कि भाई हमें हमारी जो टीम के कैप्टन हैं उन्होंने बोला है और मैं बोर्ड कर रहा हूँ और मुझे उसी में खुशी है। तो उनका जो समझने का स्टेज था वो ख़त्म हो गया है और अब वो कनेक्शन के स्टेज में आ गए हैं। So these four turn towards because their hearts have begun to open. फर्स्ट कैटेगरी में कभी खुलता है, कभी बंद हो जाता है। सेकंड कैटेगरी में किसी चीज़ को पाने के लिए खुलता है और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो पाने की तमन्ना रहती है, और जैसे ही वो मिल जाता है तो किसी और चीज़ की तमन्ना रहती है। तो थर्ड वाले में उनका their hearts have opened because they are wanting to explore the magical field of knowledge that the ancient scripts have, the understanding of divinity within themselves. और एक बार उनको वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, then they are enjoying the journey that they have. The journey is not about where you start, it is about which direction you choose. तो हमें इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। बॉन्डेज से कैसे अपने को फ्री करना है उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो वी ऑल नो, जो भी हम कर्म करते हैं, नॉर्मल कर्म और जो विकर्म जो भी करते हैं, उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन रहता है। और जो भी हमारे जो बर्थ और रिबर्थ की जर्नी है वो इस कार्मिक बॉन्डेज के कारण फंसी रहती है। और it is only a karma which is the karma which is linked to devotional service, and the karma which is done as if it is an offering to Lord Krishna. वो कर्मा जो हम अकर्मा कहते हैं वो कार्मिक बॉन्डेज से फ्री होता है। बाकी के जो भी हम कर्म करते हैं उसमें कार्मिक बॉन्डेज होता है।
तो गीता में चैप्टर 4 इन वर्स 18 में कैसे हमें कार्मिक बॉन्डेज से छुटकारा पाना है वो बहुत स्पष्ट वे से हमें बताया गया है कि हमें इनएक्शन और एक्शन इनएक्शन करना है। इनएक्शन एक्शन में और एक्शन में इनएक्शन, ये दोनों करना है। माइट बी कंफ्यूजिंग टू हियर, so it is simpler if you just understand. Inaction means कि while we are acting we should remain inwardly still, so no ego, no craving. So just like a lotus leaf which touches the water but never gets wet, so इस तरह का अगर हम inaction करें अपने एक्शन में, एक्शन तो करते रहना है, बिना एक्शन के हमारा कोई भी जर्नी पॉसिबल नहीं है। तो ये फर्स्ट वाला है। सेकंड वाला है एक्शन इन इनएक्शन, जब हम इनएक्शन करें तब भी एक्शन में रहें। सो इवन व्हेन आउटवर्डली स्टिल द माइंड विल स्टिल बी फुल ऑफ डिजायर्स। ये बॉन्डेज है, हमको इस ये जो डिजायर्स वाला कंट्रोल है वो माइंड का कंट्रोल आना चाहिए। तो जस्ट लाइक अ आइडलिंग इंजन, वो लग तो रहा है कि स्टिल है बट फ्यूल को बर्न कर रहा है। राइट विजन हमें चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम how you see action, not from avoiding action। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उसको पार्टिसिपेट करें विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व, जो भी हमारे तरफ एक्टिविटीज हो रही हैं। और कॉन्शियसनेस जो है, जो हमारी द सेल्फ इज द ऑब्जर्वर, द बॉडी एंड माइंड परफॉर्म द एक्शन। जो हमारा सोल है वो सिर्फ विटनेस करता है, ऑब्जर्व करता है। जस्ट लाइक द स्काई एंड जिसमें क्लाउड्स रहते हैं, वो which are metaphor of actions, they pass and the sky remains untouched। so हमारे सोल को हमें ऑब्जर्वर में ये मालूम होना चाहिए कि सोल ऑब्जर्व ही कर रहा है और बॉडी माइंड ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये अगर हमें पता रहेगा तो हम वो सोल की जर्नी में हम सतर्क रहेंगे। अगेन कर्मा बर्न बाय द फायर ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज या ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। चैप्टर 4 में वर्स 19, 37, 38 में यही बता रहे हैं कृष्ण जी। तो एक्शंस बर्न बाय नॉलेज, जो भी हम एक्शन करें उसको नॉलेज से बर्न हो, ईगो डिसॉल्व रहे, एक्शन लीव्स नो कार्मिक रेसिड्यू। जस्ट लाइक अ इंसिनरेटर में बर्न करने से कुछ वापस नहीं मिलता है। तो फायर ऑफ विजडम, सो नॉलेज विल बर्न ऑल द कर्मा लाइक फायर बर्न्स द फ्यूल, जस्ट लाइक द फॉरेस्ट फायर क्लियर्स द ओल्ड डेब्रिस इंस्टेंटली। The supreme purifier, no purifier equals knowledge, it cleans the inner instrument। So in verse 38 this is explained, just like a detergent removes stains without effort। so हमें अगर हमारी जो ignorance है उसको remove करना है तो सबसे important है knowledge का, ज्ञान का purification effect। और तभी end of ignorance आएगी। जब इग्नोरेंस एंड होएगी तो कार्मिक बॉन्डेज अपने आप खत्म हो जाएगा। जस्ट लाइक एक डार्क रूम में अगर हम लाइट स्विच ऑन करते हैं तो डार्कनेस खत्म हो जाती है। तो इस वजह से हमारा कार्मिक बॉन्डेज खत्म होगा। हमारी एक्शन जो भी हैं उसमें भी हमें सिनलेस होना पड़ेगा। तो चैप्टर 4 अगेन वर्स 20-23, नो अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। जैसे हमने अनमन्य वादिका का वीडियो भी आपने देखा होगा। तो एक्ट्स विदाउट क्रेविंग फॉर सक्सेस और फियर ऑफ फेलियर, नो अटैचमेंट टू रिजल्ट्स होने चाहिए, नो सेंस ऑफ डूअरशिप होनी चाहिए। ये चीज़ के मैंने किया है और एक्शंस मेरे ही का एफर्ट से हुआ है, ये यू नो इट विल लीड टू सम काइंड ऑफ कार्मिक बॉन्डेज लेटर ऑन। So just like a flute, we have given this example earlier कि अगर फ्लूट में म्यूज़िक फ्लो करना है तो फ्लूट को हॉलो रहना ज़रूरी है। हॉलो मतलब हमारा ईगो नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। वी हैव टू बी कंटेंट विद वट एवर कम्स। हमें जो भी रिजल्ट मिले, वी हैव टू, जो भी गेन हो, लॉस हो, हीट हो या कोल्ड हो,
हमें इक्वानिमिटी से उसको एक्सेप्ट करना है, डुअलिटीज ऑफ लाइफ, just like a river which accepts stones and keeps flowing. And we have to be liberated in action. So action becomes offering. So no karma is just like a यज्ञ में जब हम अपने एक्शन या आहुति डालते हैं तो वो सीक्रेट हवन बन जाता है। वैसे ही हमारी लाइफ में जितने भी एक्शंस हो हम उसको इसी तरह से एक्शंस को ऑफरिंग डालें विजडम की आग में।